In last class, we have you can say that. In last class we have done with some. We have done with light reaction and light independent and light dependent reaction. Okay, and we have also discussed with the chlorophyll and chlorophyll importance, and we have discussed how they are adapted for their function. Okay. Now, we have also discussed the absorption spectrum and action spectrum. Okay. Now, today we are going to discuss that how many pigments are there, and you can say that chloroplast, how different pigments can be present, and how they can be separated out. Because these pigments can be separated out. So, how we are going to separate it out? ठीक है ये दो चीजें आज हमें कंप्लीट करनी है. So before starting the class, first of all, let's discuss some of the pigment. As I have already told you that the color of the pigmentation is basically based on which pigment is not being absorbed. The pigment which is being reflected is given will give the color to that pigment. Like अगर chlorophyll A है, chlorophyll A blue green कलर का होता है. Blue green कलर का मतलब ये कि वो blue और green के pigments को like dark blue और dark light blue और dark green ये इनको जो है reflect कर देगा. वो इनको absorb नहीं कर सकेगा. इसी तरीके से क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन होता है. वो इन दो पिगमेंट को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी जो है पिगमेंट्स को वो कैरी करेगा. जेंथोफिल जो है वो येलो कलर का होता है. तो वो येलो कलर के पिगमेंट के अलावा बाकी सारे पिगमेंट को कैच करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दैट विच पिगमेंट does have which coloration, and the pigment which have those coloration are not going to absorb these specific color. Instead they will reflect these color. So our today's topic is chromatography. Pigments in chloroplast, and where these pigments will present, these all pigments are present in, you can say that thylakoid membrane. First of all, keratin. They will reflect orange color. ठीक है, केराटिन ऑरेंज और रेड भी बहुत ज्यादा जो है रिफ्लेक्ट करता है. ओके, थियोफाइटिन. ओके, ग्रे कलर लाइट मौजूद तो नहीं होती. सो हाउ वी कैन सी दैट के फियोफाइटिन look like a gray in color because it reflect more than two different light जिनकी कॉम्बिनेशन ग्रे कलर बनाती है. जैसे कि अगर किसी पिगमेंट का ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर इटसेल्फ व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद नहीं होता. लाइट के अंदर सिर्फ रेनबो कलर मौजूद है. ठीक है, तो लाइट के अंदर अगर कोई भी चीज ब्राउन कलर की दिख रही है, कोई पिगमेंट ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लू एंड रेड दोनों को रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स व्हाई दे अपियर्ड एज ब्राउन इन कलर. ये ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन ब्राउन कलरेशन देता है. ठीक है. Xanthophyll, they are yellow in color. Then a chlorophyll A, blue green, or chlorophyll B. These are the five pigments we are going to study in our like A2 level. They are yellow green. यार ये चार्ज पे लगा दो, इसका ऑफ होने वाला है. Miss, these all are inside the leaf, right? Sorry.
These all are inside the leaf, right? Okay, it's not necessary these all pigment present inside a single leaf. Okay, many of them may be present, but it depends on the color of the leaf, or it depends on the place where they are present. Just like I can tell you that inside water, you can say that in deep water, where only blue and green light can penetrate. तो वहां पर ब्लू और ग्रीन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मौजूद नहीं होते, वो जो भी डीप वाटर प्लांट्स होते हैं ना, लाइक डीप वाटर इट डजंट मीन दैट के आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000 मीटर डीप, वहां पे तो लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती. Light can only penetrate like near light can only penetrate like you can say that 200 मीटर below, और ज्यादा अच्छी penetrate करती है 500 मीटर से. लेकिन जो यू कैन तो उसमें जो वहां पर जो नीडेड है, अब जैसे वहां पर ब्लू लाइट और सबसे ज्यादा जो है डीप सी के अंदर ब्लू लाइट मौजूद होती है, दैट्स व्हाई ऑल द ऑफ द ओशन अपीयर्ड ब्लू. तो इट्स मीन कि दे रिक्वायर्ड सम ऑफ द पिगमेंट व्हिच कैन कैप्चर ब्लू लाइट. तो ऐसे पिगमेंट जिनके ब्लू ग्रीन कलरेशन होती है वो पिगमेंट हो गई, यानी डीप सी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं. ठीक है. Miss, so the flowers which have pink, they have these pigment or no? अच्छा, ये कौन से पिगमेंट है? दीज पिगमेंट आर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना. ये थैलाकॉइड के अंदर होते हैं. फ्लावर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट होता है. क्रोमोप्लास्ट डजंट क्रोमोप्लास्ट बेसिकली डोंट एब्जॉर्ब सनलाइट. उसका टास्क दूसरा है, उसका पर्पस दूसरा है. वो जो भी पिगमेंट है जो पेटल्स के अंदर होते हैं, फ्लावर्स के अंदर होते हैं, सो दे आर नॉट मेड फॉर जस्ट एब्जॉर्बिंग दैट. ओके. उसका मोस्टली Okay. task जो है to attract the insects, to give a bright coloration to petals so that insect could be attract. और उसका दूसरा काम होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैमोफ्लेजिंग पर्पस. इस जगह पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं, लाइक दे बेसिकली ईट द फ्लावर्स. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड those flowers competitive to that particular area so that they can save themselves for insect. वो insect को इतने bright color होते हैं, insect को भी ऐसे insect feel होते हैं, तो that's why they some sort of insect जो कि उसके लिए beneficial नहीं है वो इस पर आकर अटैक नहीं करेंगे. तो वो क्रोमोप्लास्ट कहलाता है. इसी तरीके से एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर द थ्री डिफरेंट पिगमेंट्स इन द प्लांट. लाइक एक होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर एक है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट पेटल्स के अंदर हो गए, फ्लावर्स के अंदर. एक है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर होता है, यू कैन से दैट रूट्स के अंदर. एंड दे आर कलरलेस, और यू कैन से दैट दे आर व्हाइट इन कलर. सो उसका भी काम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होता, उसका भी अलग टास्क होता है. आई होप सो यू हैव गॉट दिस वन. Yeah. ठीक है. सो इट्स मीन पेटल के अंदर थैलाकॉइड नहीं होता. हम यहाँ पे बात करते हैं फिर हाउ टू यू कैन सी दैट के हाउ टू कलेक्ट दीज पिगमेंट्स, और हाउ टू नो दैट कि किस प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद है. सो इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होनी है. एंड फॉर दैट एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस यू हैव टू सेपरेट आउट द पिगमेंट्स. एंड इट्स वेरी इजी टू सेपरेट द पिगमेंट्स. इसका एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. सो पिगमेंट्स can be separated by chromatography. Okay, how we are going to define chromatography? अच्छा, chromatography का concept क्या है? Chromatography itself is a process in which any solid particle is being separated out from running or fluid particle. ठीक है. अब chromatography की बहुत मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगी. वाटर फिल्टर प्लांट. वाटर फिल्टर जो होते हैं उसके अंदर एक सीरीज ऑफ, you can see that they are having series of beakers,
and this series of beakers have different type of soil और rock और salts, ये जो है boulders वगैरह ये होते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट कंसिडर, इसके अंदर जो है बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं सबसे पहले बीकर के अंदर, लाइक दे आर लार्ज इनफ, और इनके दरमियान जो है ना, जब बोल्डर्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो इनके दरमियान स्पेसेस बहुत होते हैं, just like they have a lot of spaces between them because of their irregularity in shape. उसके बाद इससे छोटे साइज के जो है सैंड्स इसके अंदर मौजूद होगी। दे आर particularly more, you can say that, compact to each other, and they are more particular, you can say that, uh, they are basically regular in shape, so they have less spaces between them। फिर उस इसमें फिर सैंड्स होते हैं, फाइन सैंड होती है, फाइन सैंड आर हैविंग, इससे भी ज्यादा वो उसके कम स्पेस होगी, एंड द फाइनल पार्ट इज हैविंग मड इन, and mud have very particularly coarser very 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 fine sand, muddy sand जो होती है जिसको हम सिल्ट और क्ले कहते हैं, वो इसके अंदर फिल्टर होती है। now what happened basically, एक वाटर है, like in extremely impure water is being poured from here, फर्स्ट इसके अंदर डाला जाता है। अच्छा, ये सारे जो फेसेस कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं स्टेशनरी फेस, जो जितने भी सॉइल और बोल्डर्स और ग्रेवल्स पेबल्स है, दिस इज नोन एज स्टेशनरी फेस। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस इज बेसिकली सॉलिड, वो स्टे किया हुआ होता है, एक जगह रुका होगा। मोबाइल फेस इज बेसिकली फ्लूइड फेस, दैट इज लिक्विड और फ्लूइड, एंड इट इज बीइंग पास फ्रॉम द स्टेशनरी फेस। ठीक है, अब ये जब फ्लूइड फेज जो है, अब फ्लूइड फेज जो होता है ना वो इम्प्योर होता है, इसको प्योर करना है या इसमें से कोई चीज सेपरेट आउट होनी है, तो सेपरेशन किसके अंदर होनी है, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन जो भी है वो मोबाइल फेज की होनी है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ वाटर की, अब वाटर इम्प्योर है एंड वो मोबाइल फेज है, सो व्हाट विल हैपन, वाटर इम्प्योर कैसे होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हो मौजूद, सो व्हाट विल हैपन, जो लार्जेस्ट पार्टिकल होंगे वो इस ग्रेवल और पेबल के दरमियान स्टक हो जाएंगे, फिर उससे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, फिर जब वाटर थर्ड वाले बीकर के अंदर आएगा उससे ज्यादा फाइन पार्टिकल इसमें स्टक होंगे, एंड वेरी वेरी फाइन पार्टिकल उसमें स्टक हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो बिल्कुल प्योर वाटर होगा एंड ड्रिंकेबल होगा। दिस इज द बेसिक ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टर। हाँ, एक अगर इसके अंदर, हाँ इसके अंदर से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल निकल सकते हैं, तो उसके लिए फिर वो बायो डाइजेस्टर वगैरह लगाया जाता है, सो दैट माइक्रोब्स कैन बी डाइजेस्टेड इजीली फ्रॉम द वाटर। वैसे अगर देखा जाए तो सिंपल, अगर वो मट्टी वाला पानी है तो इसमें बहुत आसानी से प्योरीफाइड हो जाता है। ठीक है, सिमिलर से कॉन्सेप्ट विद क्रोमेटोग्राफी पेपर, उसके अंदर स्टेशनरी फेस या सॉलिड फेस क्या होगा, एक पेपर होगा। नाउ दैट पेपर, उसके अंदर क्या करते हैं, इस पेपर में आपने जो भी चीज सेपरेट आउट करनी है उसको यहाँ पर जस्ट एक बार एक ड्रॉप उसका डाल देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये पिगमेंट्स को सेपरेट कर देता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर मोस्टली पिगमेंटेशन को सेपरेट करने के लिए वर्क करते हैं। जस्ट लाइक कोई ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लैक इंक का डाल दिया, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल सी के ब्लैक इंक के अंदर जितने पिगमेंट्स हैं वो सारे कलर्स पे सेपरेट हो गए, रेडिएट हो गए। अगर ब्लैक इंक ब्लू कलर से मिलके बनी हुई है, पर्पल कलर से, डार्क रेड कलर से मिलके बनी, तो वो सारे पिगमेंट्स उसमें सेपरेटली दिखने लग जाएंगे। सो यहाँ पर इसका स्टेशनरी फेस वो पेपर है, और वो जो इंक जिसके पिगमेंट सेपरेट हो रहे हैं दैट इज मोबाइल फेस। सो सिमिलरली, if we are going to separate the pigments from any, तो मैं सेकंड मैं दोबारा स्क्रीन शेयर।
Okay. So we were talking about, okay, how basically it works. Let's talk about कि हम जब पिगमेंट्स को देखते हैं तो पिगमेंट्स में पिगमेंट्स की क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया जाता है एंड बिफोर दैट we have to basically need pastels and mortar. They are basically to grind the leaf. अब जो भी लीव है, आपको जो भी लीव लेना है, स्पिनच लीव लेना है या कोई भी है, उसको लेंगे। पेस्टल एंड मोर्टार के अंदर जो है उसको रखा जाता है एंड देन उसको लीफ को बहुत सारे पीसेस, लीव्स के जो पीसेस हैं उसको एसीटोन के अंदर डाला जाता है। वी विल pour एसीटोन एंड स्टार्ट टू ग्राइंड इट विद पेस्टल। ठीक है, एंड इस पेस्टल से ग्राइंड किया जाएगा इसको एंड आफ्टर ग्राइंडिंग इट यू आर गोइंग टू फिल्टर इट आउट। जो भी इसका वो भी होगा, लिक्विड बन जाएगा लाइक, उस फ्लूइड को फिल्टर आउट कर दो। फिल्टर आउट इसलिए किया जाता है क्योंकि पिगमेंट के अलावा जो भी रेजिड्यू है, क्योंकि एसीटोन पिगमेंट को सेपरेट आउट कर देगा ना फ्लूइड फॉर्म। एसीटोन खुद एक लिक्विड है, तो फिल्टर करने से ये होगा, जो भी फिल्ट्रेट आपके पास बचेगा ना उसके अंदर से सॉलिड पार्टिकल निकल जाएंगे। नाउ यू आर ओनली हैविंग, यू कैन से दैट पिगमेंट्स इन इट। ठीक है। अच्छा, अब उसकी पिगमेंटेशन कैसे सेपरेट आउट होगी, इसमें सबसे पहले आपने एक लेना है क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर को लेने के बाद that will be rectangular in shape, somewhat like this. It look like this. Okay, so this is a chromatography paper. Then take a pencil. You remember, you have to mark a line. ठीक है, ये वो लाइन है जिसको वाटर के अंदर डिप करना है। दिस पर्टिकुलर लाइन शुड बी डिप्ड इन वाटर, सो दिस मार्क शुड बी विद पेंसिल। वाई पेंसिल? क्योंकि पेंसिल की पिगमेंटेशन सेपरेट नहीं होती। पेंसिल पिगमेंटेशन नहीं रखता ना, वो तो ग्रेफाइट का कलर है। लेकिन अगर आप कोई इंक से या मार्कर से या पेन से करोगे तो पेन के इंक के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो वो भी उस पिगमेंट के साथ जो है सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो दैट्स हम पेंसिल से मार्क करते हैं, पेंसिल मार्क। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ड्रॉप ऑफ फिल्ट्रेट ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। आपने इसको एक ड्रॉप लगा दिया बिल्कुल उसी मार्क के बीच में, लाइक जो हमने पेंसिल मार्क किया उसी मार्क के बीच में हमने एक ड्रॉप डाल दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैंग दिस फिल्टर पेपर विद दिस क्रोमेटोग्राफी पेपर विद सम ऑफ द आयरन स्टैंड। और उसको हैंग करने के बाद इसके नीचे एक बीकर रख दिया हमने। ठीक है, दिस बीकर विल हैव वाटर इन इट, और इस वाटर के अंदर ये इतना ही डिप होना चाहिए जितना मार्क है, या मार्क से थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस मार्क। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस water will become a fluid phase or mobile phase and will have this pigment to इस मतलब ये जो एसीटोन फिल्ट्रेट है इसके अंदर से पिगमेंट को स्प्रेड आउट होने पे हेल्प आउट करेगा। ठीक है। डू रिमेम्बर, वाटर शुडंट बी अबव द पेंसिल मार्क। या तो बिल्कुल पेंसिल मार्क से टच हो या उससे नीचे, और बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा नीचे। ठीक है, गॉट इट? हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस Yes. प्रैक्टिकल? So yeah, after this, Yes. what after that, what will happen? After some time, you will notice that pigments are separating out from the paper. Like we have to put it for few hours, and after that particular time, pigments basically separate out in a different color form. अब अभी हमने ऊपर पिगमेंट की पूरी लिस्ट बनाई थी कि फियोफाइटिन किस कलर का होता है, ज़ेंथोफिल किस कलर का होता है, तो वो सारे पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर में अलग हो जाएंगे। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। सो सेपरेशन glass pigment.
Okay. Here is the original picture. ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, दिस पॉइंट वाज द पॉइंट वेयर दे हैव पुट बेसिकली द फिल्ट्रेट को ड्रॉपर से यहाँ पे pour आउट। अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट कहलाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज लाइक, हम इसको कहेंगे टॉप पॉइंट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। लाइक हम इसको ए एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर बेसिकली यूज टू हेल्प टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो नहीं कहेंगे, रेशियो ऑफ पिगमेंट ईच पिगमेंट। तो ये आर एफ फैक्टर का ये एक्स कहलाता है। एक्स लाइक ये वाला पॉइंट कहलाएगा, एक्स इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब एक्स के साथ जो है देखो, एक ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इन्होंने मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हम स्केल लेंगे, यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट से लेके जहाँ पे हमने पेंसिल मार्क लगाया था उस पॉइंट से लेके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये किसकी लेंथ आ जाएगी इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, दिस विल बी द लेंथ ऑफ एक्स। अच्छा, अब मुझे रेशो मालूम करना है पिगमेंट डी का। तो पिगमेंट डी का रेशो कैसे पता चलेगा? आर एफ फैक्टर ऑफ डी, पिगमेंट डी, इट विल बी फाइंड आउट बाय डी अपॉन एक्स। इसी तरीके से आर एफ फैक्टर ऑफ ए कैसे मिलेगा हमें? ए अपॉन एक्स, यानी सबको टोटल से डिवाइड। एंड हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट? जो उन्होंने एरो मार्क किया हुआ है इसको हमने जस्ट मेजर करना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटीमीटर मेजर कर दो। सिमिलरली बी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटीमीटर मेजर कर दो। गॉट इट? Yes. अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे सबका कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये डी है, पिगमेंट डी है। ठीक है, सो ये इसका जो मिडल पॉइंट होता है ना, हम इसको मार, इफ यू नोटिस सबका मिडल पॉइंट मार, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क द मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द पिगमेंट। अच्छा, ये पिगमेंट कौन सा है? अगर इसको देखा जाए, हमने जो पिगमेंट की लिस्ट बनाई थी ऊपर, ये कौन सा पिगमेंट होगा? ये येलो ग्रीन है, ये क्लोरोफिल बी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? क्लोरोफिल ए जो है ब्लू ग्रीन है। तो जस्ट हैव अ लुक, दिस इज ब्लू ग्रीन, ये क्लोरोफिल ए हो, ये क्लोरोफिल बी है। ठीक है, ये किस में है? येलो शेड में, और ये ऑरेंजिश और ब्राउन शेड में है ना। तो ये वाला एक ज़ैंथोफिल हो गया इसके अंदर, और एक कैरोटीन है। डार्क जो शेड है वो कैरोटीन का है, और ये किसका हो गया? ज़ैंथोफिल। ठीक है, Yeah. ठीक है, इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होते हैं। एंड अच्छा, यहाँ पे एक और भी है, मैं इसको शो करती हूँ। इसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल के दोनों टाइप, और थोड़ा सा ज़ैंथोफिल लिखेगा। अच्छा, ये ना ये लीव्स के नेम रखे हुए होते हैं, जैसे एक जी 11 रख दिया, एक जी 12 रख दिया, एक ग्रुप का नेम भी हो सकता है, सबको अलग अलग वो मिले होते हैं लीव्स। ठीक है, सो लेट्स, मैं तो ढूंढ रही थी कि फियो को 5 मिल जाए, तो अभी दिखा देती हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? No. अच्छा, मैं यहाँ पे ये वाली मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रही हूँ, और इसके बाद दूसरी मीटिंग शेयर करेंगे उस पर। Okay.